Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana District, Fazilka, and I welcome you all in this channel of economics, Amit Juneja Economics. So, in the last lecture, we discussed about two major views given by macroeconomics. One are the classical views and the other one are the Keynesian views. In this lecture we studied about what classicals had said about the macroeconomics or what Keynes has said about the macroeconomics, and we see that there is a lot of difference between the views given by the classicals and by the Keynesian. As far as the classicals are concerned, they advocated the long run equilibrium. Number two, they advocated the full employment equilibrium in the economy. Automatic adjustments in the economy means no interference by the government in the economic activities, and as well as the concept of perfect competition. But when we studied Keynes, he provided his views totally against of that of the classicals. He advocated short run equilibrium. Number two, underemployment equilibrium. Number two, there is a dire need of government interference in the economic activities, especially at the time of depression and perfect competition. Now, in this lecture, we are going to discuss the importance of macroeconomics. And when we talk about the importance of macroeconomics, basically what we are going to study. So first of all, we write our topic name, importance of macroeconomics. तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस के बारे में देखेंगे तो हमारा मेन पर्पस जो है वो ये रहेगा कि हम इस बात को जो है क्लैरिफाई कर सकें कि हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स. व्हाई मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज सो मच स्ट्रेस्ड बाय केन्स इन हिज एनालिसिस. क्यों केन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक डिस्टिंक्ट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स के तौर पे डेवलप किया जब हमारे पास ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो थी. तो फिर भी केन्स ने जो है वो क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स को एडवोकेट किया, आज हम उसी चीज की बात जो है वो करेंगे. अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस को एक जर्नल फ्रेमवर्क के अंदर देखें, देन वी कैन से दैट द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स एज फार एज द फंक्शनिंग ऑफ द होल इकोनॉमी इज कंसर्न. बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स कैन डील विद ओनली द individuals, but macroeconomics deals with the economy as a whole. And as we have studied in our last lectures that there are certain rules which are only applicable to the microeconomics, but they are not as much as applicable to the economy as well. So क्या होगा कि जो microeconomics के rules होंगे, हमने already discuss किया कि वो क्या होंगे, वो अलग होंगे, और जो macroeconomics के rules हैं वो अलग होंगे. कई बार क्या होगा भी एक जो रूल है, एक जो लॉ है, वो इंडिविजुअल्स पर तो इंप्लीमेंट होगा बट वो पूरी की पूरी इकोनॉमी पे इंप्लीमेंट जो है वो नहीं होगा. व्हाट वी कैन कॉल दिस, वी कैन कॉल दिस माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्सेस, एंड वी डील विद दिस टॉपिक इन आवर कमिंग लेक्चर्स. माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्सेस. पैराडॉक्सेस मींस contradiction. Micro macro contradiction, we will deal with this in our next lecture. So first of all, in today's lecture we'll discuss about the importance of macroeconomics, ki how macroeconomics is important for our economy as well as for the world economy. क्यों? क्योंकि अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हम पूरी की पूरी इकोनॉमी की फंक्शनिंग की बात करते हैं. हम ऑलरेडी इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर चुके हैं कि इकोनॉमी क्या होती है. उसमें मैंने एक चीज को क्लियर किया था कि इकोनॉमी का मतलब कोई ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है. इकोनॉमी के अंदर वो सारा का सारा एरिया आता है जिसके अंदर हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने का राइट जो है वो मिला हुआ है. मतलब
मतलब वो सारा एरिया जहां पर जाकर हम कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज एंड फाइनेंस कर सकते हैं, वो सारा एरिया जो है वो हमारी इकोनॉमी का एक पार्ट रहेगा। ये भी पॉसिबल है कि एक एरिया हमारी इकोनॉमी का पार्ट हो बट वो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री का पार्ट जो है वो ना हो, और ये भी हो सकता है कि एक एरिया हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री का पार्ट हो पर वो हमारी इकोनॉमी का पार्ट जो है वो ना हो। तो हम दोनों कॉन्सेप्ट जो है उसको लेके चलेंगे। तो इकोनॉमी को अगर समझना है तो पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि इकोनॉमी के टाइम पे हमें किसी भी तरह का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसको हमने ध्यान में नहीं रखना है। इसलिए अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरी की पूरी इकोनॉमी की फंक्शनिंग के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट जो है वो हुआ करती है। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट कि इट टेल्स अस अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए अब जब मैं ये वर्ड लिखता हूं कि इट टेल्स अस अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, तो एक इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है, एक इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करती है। देखिए वर्ल्ड के अंदर जितनी भी इकोनॉमीज हैं वो सारी की सारी इकोनॉमीज जो है वो तीन तरह से हो सकती हैं। जैसे अब वो जो फर्स्ट इकोनॉमी है उसको हम कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एन इकोनॉमी which is capitalistic economy. Number 2 there comes the socialistic economy, and number 3 comes the mixed economy. Okay, there are three type of economies. One are the capitalistic economy, second one is the socialistic economy, and third one is the mixed economy. अब तीनों इकोनॉमीज की जो फंक्शनिंग है वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। कैसे डिफरेंट होगी? अगर हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये वो इकोनॉमीज हुआ करती हैं जिनके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है वो डोमिनेट करता है। मतलब सारी की सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज एंड फाइनेंस, ऑल दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। ओके, अब सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर किसी तरह की कोई इंटरफेरेंस जो है वो नहीं है। मतलब जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce, how much to produce, all the economic decisions are taken by the private sector. Okay, and if the private sector is taking some decision, the major objective of the private sector is to maximize the profits. So जो capitalistic economy होगी उसके अंदर the main purpose or the main objective behind economic activities is to earn the profits and to maximize the profit. अब अगर इसकी फंक्शनिंग की बात करें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की, तो जो इसकी फंक्शनिंग रहेगी वो टोटली डिफरेंट रहेगी, क्योंकि इसमें जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी उन सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पीछे जो सिंगल ऑब्जेक्टिव काम करेगा वो क्या करेगा, वो प्रॉफिट मोटिव जो है वो रहेगा। अगर हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी में आ जाते हैं तो इट इज टोटली इनवर्स ऑफ द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ये एक ऐसी इकोनॉमी होगी जहां पर ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जो गवर्नमेंट है वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इनिशिएट करेगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce, all the decisions are taken by the government sector, and if the government is taking some decisions, the major purpose or the major objective of the government is not to earn the profit, rather is to maximize the welfare of the people. तो गवर्नमेंट का जो पर्पस रहेगा किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के पीछे वो क्या रहेगा, वो लोगों का वेलफेयर करना जो है वो रहेगा। अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो मिक्स्ड क्या है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एंड द सोशलिस्टिक इकोनॉमी। अब इसके
इसके अंदर क्या होगा, देयर आर बोथ टाइप ऑफ sectors working together in an economy, like the private sector is also working and the government sector is also working in tandem with the private sector. जो दोनों सेक्टर हैं वो आपस में मिलके काम करेंगे। जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करेगा, जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो वेलफेयर के लिए काम करेगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे और द मोस्ट क्रिटिकल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट होंगे, गवर्नमेंट उनको अपने डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर रखेगी। बाकी जो लेस इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको वो प्राइवेट सेक्टर को जो है वो दे देगी, सो दैट द प्राइवेट सेक्टर कैन अर्न द प्रॉफिट्स। क्यों? क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें एक क्राइटेरिया आता है जिसको हम कहते हैं री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। जो री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि इकोनॉमी की डेवलपमेंट जो है दैट डिपेंड्स अपॉन री इन्वेस्टमेंट। री इन्वेस्टमेंट मींस क्या हुआ, जैसे हम एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं इस केस में कि सपोज कीजिए कि एक शॉपकीपर है, उसने एक छोटी सी दुकान जो है वो खोली, वहां से उसने जो अपनी इनकम अर्न की, प्रॉफिट कमाए, प्रॉफिट कमा के उसको फिर से अपनी शॉप में लगा दिया तो शॉप थोड़ी बड़ी कर ली, फिर पैसे कमाए, उसको फिर से शॉप में लगाया तो शॉप थोड़ी और बड़ी कर ली। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, अपने पैसे कमा रहा है, उसको दोबारा से इन्वेस्ट कर रहा है तो उससे और ज्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रहा है। तो इसलिए क्या होगा, जो री इन्वेस्टमेंट होता है मतलब जो प्रॉफिट्स अर्न किए जाते हैं बाय मेकिंग सम इन्वेस्टमेंट, अगर उनको फिर से इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो इट विल बी अ ग्रेट बूम टू द इकोनॉमी। सो अगर प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट नहीं अर्न करेगा तो री इन्वेस्टमेंट कहां से करेगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाएगी। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन टुडेस टाइम आर द मिक्स्ड इकोनॉमीज। इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करता है। जो प्राइवेट सेक्टर है वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करता, वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं लाइक रेलवे, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं और बाकी चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट ने जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें ये पता लगेगा कि इकोनॉमी जो है वो कैसे फंक्शन कर रही है, क्योंकि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के काम करने का तरीका, सोशलिस्टिक इकोनॉमी के काम करने का तरीका और मिक्स्ड इकोनॉमी के काम करने का तरीका जो है वो क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। तो इन सारे डिफरेंसेस की जो हमें नॉलेज मिलेगी वो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही जो है वो मिलने वाली है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है कि हाउ एन इकोनॉमी कैन वर्क एंड हु आर द पर्सन हु आर टेकिंग द इकोनॉमिक डिसीजंस। क्यों? क्योंकि अगर हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसके अंदर जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो कौन लेगा, वो प्राइवेट सेक्टर लेगा। अगर सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात करें उसमें जो इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे वो गवर्नमेंट लेगी और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो मिलके इस तरह के डिसीजन जो है वो लिया करेंगे। सो जो फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी है उसकी नॉलेज हमें कहां से मिलती है, उसकी नॉलेज हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही जो है वो मिला करती है। नंबर 2 जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इट टेल्स अस अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उससे हमें जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनकी नॉलेज मिलती है। जब हमने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की थी उसमें हमने बात की थी कि एक्चुअली जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, वेरिएबल्स वही ही होते हैं, सिर्फ उनका जो लेवल है वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिमांड को स्टडी करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एग्रीगेट डिमांड को जो है वो स्टडी करेंगे। वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम सप्लाई को स्टडी करेंगे तो इसके अंदर हम एग्रीगेट सप्लाई जो है उसको स्टडी करेंगे। माइक्रो के अंदर हम प्राइस को स्टडी करेंगे पर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जर्नल प्राइस लेवल जो है उसको स्टडी करेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जर्नल प्राइस लेवल, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट,
एग्रीगेट सेविंग, एग्रीगेट कंजम्पशन, ये सारी चीजें क्या हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। आई एम रिपीटिंग द वर्ड वेरिएबल। मैंने डिफरेंस बताया था अपने लेक्चर के अंदर वेरिएबल के बीच में भी। अगर आपने किसी भी चीज को वेरिएबल बोलना है then that thing has to fulfill two conditions। पहला, उसके अंदर चेंजेस आने चाहिए। नंबर टू, जो भी चेंज आए वो चेंज मेजरेबल होना चाहिए। ओनली दैट देन दैट थिंग विल बी कॉल्ड अ वेरिएबल। अब जो वेरिएबल है, अब सोचो मैं कहता हूं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो अपने आप के अंदर एक वेरिएबल है। क्यों? पहली बात तो ये कि एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो है वो सेम नहीं रहता। अगर हम बूम की बात करें, यानी इकोनॉमी जब बूम पे बैठी है, अपनी टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठी है, उस टाइम पे क्या होगा, जो एग्रीगेट डिमांड है वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड का लेवल चेंज होगा। कितना चेंज होगा हम उसको मेजर भी कर सकते हैं। वैसे ही एग्रीगेट सप्लाई, उसको भी इंक्रीज हो जाएगी। कितना इंक्रीज होगी हम उसको भी मेजर कर सकते हैं। जनरल प्राइस लेवल चेंज होता रहता है, कितना चेंज होता है हम उसको मेजर भी कर सकते हैं। तो इकोनॉमी के अंदर अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, यानी ऐसे इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो डील करते हैं विद द इकोनॉमी एज अ होल, देन these variables are called macroeconomic variables। and how these macro variables are functioning and what is the nature of these macroeconomic variables, all these things are clarified to us with the help of macroeconomics। so macroeconomics जो है वो क्या करती है, जो macroeconomic variables हैं उनके बारे में भी हमें नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं मैक्रोइकोनॉमिक्स जो है क्या करती है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। देखिए, अब हम अपनी इकोनॉमी के अंदर बहुत तरह की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो बनाते हैं। अब इकोनॉमिक पॉलिसीज में हम क्या लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग ले सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, वैसे अब पहले अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है उसको बनाया करता था प्लानिंग कमीशन। ठीक है, जो इंडिया में पहले हुआ करता था बट अब नहीं है, क्योंकि फ्रॉम 2015 ठीक है जो प्लानिंग कमीशन है उसको बंद कर दिया गया है और उसकी जगह पे नीति आयोग जो है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जो इंडिया के अंदर प्लान्स बनते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो प्लानिंग है वो एक प्लानिंग कमीशन नहीं बनाता, वो कौन बनाता है, वो नीति आयोग जो है वो बनाता है। अब व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग? जो वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ये आप अपनी इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा हम आइडिया ले लेते हैं जो मेजर डिफरेंस है इकोनॉमिक प्लानिंग और प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के अंदर। कि देखिए, एक अप्रोच जो होती है प्लानिंग की वो होती है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मींस कि जो प्लानिंग है वो टॉप से चलेगी और उसके बाद नीचे आएगी। एक होती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी प्लानिंग नीचे से चलेगी और ऊपर से जाएगी। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, जो प्लान्स बनते थे दे आर इन द हायरार्की ऑफ टॉप टू बॉटम, मतलब जो प्लान है वो सेंट्रल लेवल पे बनेगा, सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल पे आएगा, स्टेट लेवल से लोकल लेवल पे आएगा। अब जो नीति आयोग है इसमें ऐसा नहीं है, इसमें प्लान पहले लोकल लेवल पे बनते हैं फिर वो स्टेट लेवल पे जाते हैं। स्टेट क्या करती है, उन सारे जो लोकल प्लान्स होते हैं उनको कंबाइन करती है और स्टेट प्लान बनाती है। देन द स्टेट प्लान गोज टू द सेंट्रल लेवल और वहां पे सेंट्रल प्लानिंग जो अथॉरिटी है आजकल नीति आयोग वो प्लान जो है वो बनाती है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारी हेल्प करती है सो दैट वी कैन फ्रेम द इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब सिर्फ ये नहीं कहना कि इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर सिर्फ इकोनॉमिक प्लानिंग ही आती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमिक प्लानिंग के अलावा और बहुत सारी जो पॉलिसीज हैं उनको बनाने में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारी हेल्प करती है। अब उसमें और कौन सी आ जाती हैं, उसके अंदर हम एक जो है वो गवर्नमेंट की
मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो ले सकते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या है, वो गवर्नमेंट की मनी रिलेटेड पॉलिसी जो है वो हो जाती है। मनी रिलेटेड पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, अब मनी के केस में सिर्फ दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, मनी की डिमांड कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, मनी की सप्लाई कर सकते हैं। MONE जो है तो मनी की या तो क्या हो सकती है, डिमांड हो सकती है, या क्या हो सकती है, सप्लाई हो सकती है। यानी जो गवर्नमेंट है या जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, एज फार एज द केस ऑफ इंडिया इज कंसर्न, अब गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक क्या चाहते हैं कि उन्होंने मनी की कितनी सप्लाई करनी है, मतलब कितने नोट, कितने कॉइन जो हैं वो पब्लिश करके भेजने हैं, और मार्केट में वो जो मनी आएगी उसकी कितनी डिमांड करवानी है। अगर रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादा नोट, ज्यादा कॉइन पब्लिश करना शुरू कर दे तो क्या होगा, जो सप्लाई ऑफ मनी है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, और जो डिमांड फॉर मनी है वो क्या होगी। अब उसको अगर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट जो है उसको वो कम कर देंगे। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि लोग जो हैं वो डिमांड फॉर मनी जो है वो ज्यादा करनी जो है वो शुरू कर देंगे। अगर इंटरेस्ट रेट जो है उनको बढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा, लोग जो हैं वो डिमांड फॉर मनी कम करनी जो है वो शुरू कर देंगे। सो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के अंदर भी कौन हमारी हेल्प करता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स ही हमारी हेल्प किया करती है। इसके अलावा एक और पॉलिसी होती है जिसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। ये हमने कल डिस्कस किया था कि जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल वर्ड जो है वो बना है फिस्क से। तो फिस्क का मतलब क्या होता है, फिस्क मींस द ट्रेजरी, ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की ट्रेजरी के अंदर कितने पैसे होंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, वन इज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर इज द एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट। सो जो फिस्कल पॉलिसी है दैट रिलेट्स विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को कहां से कितनी कितनी इनकम होगी किस पे डिपेंड करता है, वो गवर्नमेंट की इनकम के जो वेरियस सोर्सेज हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब सोर्सेज दो हो सकते हैं, वन आर द टैक्स सोर्सेज एंड अदर वन आर द नॉन टैक्स सोर्सेज। वैसे ही गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बहुत तरह से करती है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर हो सकता है, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर हो सकता है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो ये सारे जो पॉलिसीज हैं वो कौन बनाएगा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बनाएगी। इसके अलावा हम इसके अंदर प्राइस पॉलिसी जो है उसकी एग्जांपल ले सकते हैं। वो प्राइस पॉलिसी में क्या होगा, देखिए बहुत सारी चीजों का जो प्राइस है that is determined by the government and that prices are called administered prices। जो prices government decide करती है those prices are called administered prices। like कि मान लीजिए कि आप पोस्ट ऑफिस में गए, आपने रजिस्ट्री करवानी है, या आपने स्पीड पोस्ट करवानी है, या आपने सिंपल पोस्ट जो है वो डालनी है, तो उसके ऊपर कितने की टिकट लगेगी वो कौन डिसाइड करता है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो वो क्या है, वो गवर्नमेंट की प्राइस पॉलिसी है। नंबर 2, अगर मान लो आप ट्रेन पे जाते हैं तो रेंट कितना होगा, डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इलेक्ट्रिसिटी के रेट कितने होंगे, डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, एलपीजी या सीएनजी या पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, उसका रेट कितना होगा, डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजों के रेट जो हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, वो तो उसकी प्राइस पॉलिसी के अंदर जो है वो आ जाते हैं। इसके अलावा प्राइस पॉलिसी के अंदर जो फार्मर्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किया जाता है उसको भी हम इंक्लूड करके चलते हैं। तो ये सारे डिसीजन जो हैं वो लेने में कौन हेल्प करता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी हेल्प करती है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका ये काम है कि उसने क्या करना है, जो बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारी कंट्री के अंदर बनती हैं उन सारी की सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाने के अंदर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारी हेल्प करती है। अगर ये इकोनॉमिक पॉलिसीज ना बने, अब नाम से क्लियर
लीजिए इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, अगर ये इकोनॉमिक पॉलिसीज ना बने तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी को चलाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इफ वी डोंट हैव अ मॉनेटरी पॉलिसी, अ फिस्कल पॉलिसी, अ प्राइस पॉलिसी और द इकोनॉमिक प्लानिंग, वी आर नॉट एबल टू रन आवर इकोनॉमी इन अ स्मूथ वे। क्या होगा, दैट इज एंटायरली लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस। तो मार्केट फोर्सेस जब जो है डोमिनेट करेंगे, इन दैट केस इकोनॉमी के अंदर अप्स एंड डाउन्स जो है वो बहुत ज्यादा आएंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी इस काम के अंदर जो है वो हेल्प करती है। उसके बाद जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इट हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या करती है, जो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनकी स्टडी में भी हेल्प करती है। कैसे, देखिए अभी हमने बात की कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो मैक्रो होते हैं, जो ये होते हैं जो माइक्रो होते हैं। माइक्रो में हम क्या लेते हैं, इंडिविजुअल वेरिएबल्स को लेते हैं, लाइक डिमांड, लाइक सप्लाई, लाइक प्राइस, लाइक मार्केट, फर्म, इंडस्ट्री, हाउस होल्ड, सिंगल कंज्यूमर, सिंगल प्रोड्यूसर, सिंगल इन्वेस्टर, सिंगल फाइनेंसर। तो हम इनकी बात करते हैं। तो क्या होता है कि अब अगर हमने कोई रूल्स बनाने हैं तो उस रूल को बनाने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है उसको हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड। ओके, अगर कोई भी रूल्स फ्रेम करने हैं तो दो मेथड्स हैं, एक इंडक्टिव मेथड होता है और एक होता है जिसको हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड। ओके, इंडक्टिव मेथड क्या करता है, इट गोज फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, पर्टिकुलर टू जनरल, और जो डिडक्टिव मेथड है दैट गोज फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, यानी पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर मींस वन। तो इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, हम पर्टिकुलर यानी कि वन टू जनरल मींस ऑल, वन टू ऑल जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, ठीक है, अगर मैं आपकी एग्जांपल लूं, मैं कहूं कि अगर आपकी क्लास में इस टाइम पे मान लीजिए कि 50 लोग बैठे हैं, तो सारे इसीलिए बैठे हैं क्योंकि वो सारे के सारे इकोनॉमिक्स का लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है। और अगर ये इकोनॉमिक्स का लेक्चर +2 क्लास में है तो इसका मतलब आप सारे +2 के होंगे। अब सोचो कि अगर मैं कहूं कि आपकी क्लास में जो फर्स्ट बेंच पे फर्स्ट जो स्टूडेंट बैठा है वो +2 का है और इकोनॉमिक्स का है, +2 इकोनॉमिक्स, सेकंड +2 इकोनॉमिक्स, थर्ड +2 इकोनॉमिक्स, फोर्थ +2 इकोनॉमिक्स, फिफ्थ +2 इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा ये +2 इकोनॉमिक्स का है, ये +2 इकोनॉमिक्स का है, ये +2 इकोनॉमिक्स का है, ये +2 इकोनॉमिक्स का है। इसका मतलब आप सारे +2 इकोनॉमिक्स के हैं। मैंने क्या किया, मैं 1 1 2 ऑल गया। उल्टा अगर मैं डिडक्टिव मेथड यूज करूं, मैं कहूंगा आप सारे जो हैं वो +2 इकोनॉमिक्स के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट नंबर 1 +2 इकोनॉमिक्स का है, स्टूडेंट नंबर 2 +2 इकोनॉमिक्स का है, स्टूडेंट नंबर 3 +2 इकोनॉमिक्स का है, स्टूडेंट नंबर 4 +2 इकोनॉमिक्स का है एंड सो ऑन। अब मैं क्या किया, अब मैंने सभी से एक एक पे आया, तो कौन सा मेथड है, डिडक्टिव। अब क्या होता है, जब भी इकोनॉमिक्स के अंदर कोई लॉज बनते हैं तो वो हर एक इंडिविजुअल के लिए नहीं बन सकते। क्यों, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल के लिए लॉज बनाएंगे तो इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल्स के लिए लॉज नहीं बना सकते। एक इंडिविजुअल पे लॉ एप्लीकेबल होगा, फिर दूसरे पे होगा कि नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, तीसरे पे होगा कि नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो हम इंडिविजुअल लेवल पे रूल्स जो हैं वो नहीं बना सकते। तो जब भी रूल्स फ्रेम होते हैं वो हमेशा मैक्रो लेवल पे जो है वो फ्रेम होते हैं। मतलब जो रूल बनेगा तो पूरे की पूरी इकोनॉमी के लिए बनेगा। फिर क्या करेंगे, फिर हम उस रूल को आगे इंडिविजुअल्स के ऊपर जो है वो लगा के देखेंगे। अगर तो वो रूल जो है वो मोस्ट ऑफ द पीपल, आई एम नॉट सेइंग दैट ऑन ऑल द पीपल, व्हाई, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस,
जो भी लॉ बनेगा वो सारे लोगों पर इंप्लीमेंट नहीं होगा, बट इफ दैट रूल और दैट थ्योरी और दैट लॉ इज इंप्लीमेंटेड ऑन मोस्ट ऑफ द पीपल, हम कहेंगे लॉ इज पास्ड, उसको क्या कर देना चाहिए, इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। और जिन लोगों पर वो इंप्लीमेंट नहीं होगा हम उसको या तो अजम्पशंस के तौर पे ले लेंगे कि इन लोगों पर इन चीजों के करके लॉ इंप्लीमेंट नहीं हुआ, दैट्स व्हाई दीस थिंग्स हैव बिकम द अजम्पशंस ऑफ दिस लॉ, और हम क्या करेंगे, उन लोगों को उस लॉ की एक्सेप्शन जो है वो मान लेंगे। तो जैसे हम बात करते हैं, एक लॉ आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्या कहता है, इट्स अ माइक्रो लॉ, जो ये कहता है कि व्हेन यू कंज्यूम एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ कम्युनिटी, आई एम यूजिंग द वर्ड कंज्यूम, when you consume one additional unit of a commodity on continuous basis, the marginal utility you get from the every additional unit goes on decreasing। मतलब कहने का क्या हुआ भी, अगर आप किसी भी कम्युनिटी की जो यूनिट्स हैं आप उनको कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करते जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको वो चीज अच्छी लगनी बंद हो जाएगी। अगर मैं कहता हूं कि मेरी फेवरेट जो है, मान लो मैं कहता हूं कि खीर इज माय फेवरेट, तो वो फेवरेट क्यों है, वो फेवरेट इसलिए है क्योंकि वो कभी कभी मिलती है। अगर मैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों के अंदर जो है वो खीर खाऊंगा और एक हफ्ते तक जो है वो सिर्फ खीर ही खाऊंगा, क्या होगा, एक हफ्ते के बाद खीर अच्छी लगनी बंद हो जाएगी। यही वो लॉ कहता है कि जो भी आपको किसी भी कम्युनिटी से यूटिलिटी मिलती है, दैट यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, वो कम होगी इफ यू कंटिन्यूअसली कंज्यूम दैट कम्युनिटी। तो इसलिए अब वो लॉ पहले किस लेवल पे बनाया गया, मैक्रो लेवल पे, बाद में क्या किया गया, उसको एक एक लोगों पे ऊपर जो है वो लगा के देख लिया गया कि हाँ लॉ जो लॉ है वो इंप्लीमेंट हो रहा है। हाँ देयर आर सर्टेन अजम्पशंस जो है एक्सेप्शंस ऑफ दिस लॉ आल्सो, जैसे मान लीजिए हम वो अच्छी मूवी देखते हैं तो हमारा दिल करता है दोबारा देखें, तो दोबारा देखने का मन करता है, एक अच्छी बुक पढ़ते हैं दोबारा पढ़ने का मन करता है। जो लोग कॉइन कलेक्शन करते हैं, जितने कॉइन्स उनके पास और आते जाएंगे उनकी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। तो कुछ केसेस में ये लॉ इंप्लीमेंट नहीं भी होता, पर वो बहुत कम केसेस हैं। ज्यादातर केसेस में जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंप्लीमेंट होता है। तो अब लॉ बना, मैक्रो लेवल पे इंप्लीमेंट किया, माइक्रो लेवल पे, तो माइक्रो लेवल जो है उसको स्टडी करने के अंदर भी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारी हेल्प करती है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमारी हेल्प करती है, इट हेल्प्स इन द estimation एंड मेजरमेंट, हम दोनों चीजें यूज करेंगे, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी नेशनल इनकम होती है हम उसको मेजर करते हैं। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारी हेल्प करती है इन द एस्टिमेशन एंड द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अगर सोचिए हमें कोई इकोनॉमिक प्लानिंग बनानी है, फॉर एग्जांपल हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी है, ठीक है, हमें इकोनॉमिक प्लानिंग बनानी है, 5 ईयर प्लान्स बनाने हैं एंड सो ऑल लाइक दैट। अगर हमें अपनी नेशनल इनकम ही नहीं पता होगी तो हम इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो कैसे फ्रेम करेंगे, बात सोचने वाली है। अगर सोचो हम हर साल, हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपना बजट प्रेजेंट करती है, अगर गवर्नमेंट अपना बजट प्रेजेंट कर दे, है ना, अब बजट में क्या होगा, इनकम और एक्सपेंडिचर। अगर सोचो गवर्नमेंट को अपनी इनकम ही पता ना हो तो बजट कैसे बनाएगी। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारी हेल्प करती है कि हम क्या कर सकें, जो नेशनल इनकम है हम उसको कैलकुलेट कर सकें, नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी, उसके बाद उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो बना सकते हैं। और यही नेशनल इनकम जो है वो हमें इस लायक बनाती है कि हम क्या कर सकें, वी कैन कंपेयर आवर इकोनॉमी विद द अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, और वी कैन कंपेयर द डेवलपमेंटल लेवल ऑफ आवर इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक वी कैन टर्म आवरसेल्फ अ डेवलप्ड इकोनॉमी और अ डेवलपिंग इकोनॉमी और एन अंडरडेवलप्ड इकोनॉमी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ आवर नेशनल
नेशनल इनकम, कि अगर तो हमारी नेशनल इनकम जो है वो बहुत ज्यादा है, देन वी कैन टर्म आवरसेल्फ एज अ डेवलप्ड नेशन, एंड इफ आवर नेशनल इनकम इज वेरी लो, देन वी कैन कॉल आवरसेल्फ अ अंडरडेवलप्ड कंट्री और अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, एंड इफ वी आर लाइंग इन बिटवीन, देन वी कैन कॉल आवरसेल्फ अ डेवलपिंग इकोनॉमी. सो इंडिया, अगर मैं बोलूं कि इंडिया जो है वो कौन सी इकोनॉमी है, अब इंडिया जो है वो अंडर डेवलप्ड तो है नहीं, क्योंकि हमारी इनकम इतनी भी कम नहीं है, पर इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप्ड भी नहीं है, कि हमारी इनकम इतनी ज्यादा भी नहीं है. सो वी आर लाइंग इन बिटवीन. सो दैट्स व्हाई इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन. अब वो किसने बताया? वो नेशनल इनकम ने बताया कि हम जो है इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिड वे में लाई कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी. एंड नाउ हु इज रिस्पांसिबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम? इट इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो नेशनल इनकम को मेजर करने के अंदर हमारी हेल्प करती है. फिर इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंटल मॉडल्स और मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. देखिए, हमने लास्ट एक लेक्चर में इनकी बात भी की थी कि अगर किसी भी कंट्री ने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, फॉर दैट इट इज नेसेसरी कि वो जो इकोनॉमी है वो कोई ना कोई मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है उसको फॉलो करे. हमने बात की थी कि मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट या मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर क्या होता है, बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं जिनके अकॉर्डिंगली, या हम कह सकते हैं कि बहुत सारे पैटर्न्स दिए गए होते हैं जिनके अकॉर्डिंगली कोई कंट्री अपनी डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है उसको फॉलो कर सकती है. हम इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल जो है वो लेते हैं. अब क्या होगा, सपोज कीजिए कि आप सारे मेरे सामने इस टाइम पे एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जो हैं वो बैठे हुए हैं. अब मैं आपको एक लेक्चर दे रहा हूं इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर. अब आप बाद में जाके इसको स्टडी करेंगे. अब क्या होगा, जब आप स्टडी करेंगे तो हर एक स्टूडेंट के जो स्टडी करने का जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है ना. कोई इसको एक सिंगल सिटिंग में पढ़ेगा, कोई इसको 2 सिटिंग में पढ़ेगा. तो अब आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि आपने इंग्लिश इतने टाइम में पढ़ना है, आपने इकोनॉमिक्स इतने टाइम में पढ़ना है, आपने हिस्ट्री इतने टाइम में पढ़ना है, आपने मैथमेटिक्स इतने टाइम में पढ़ना है, या आपने अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज इतने टाइम में पढ़ना है. क्या होगा, टाइम टेबल बनेगा. हर स्टूडेंट का अपना अपना टाइम टेबल होता है. हम दो स्टूडेंट के टाइम टेबल को कंपेयर जो है वो नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस. कोई कैसे पढ़ना पसंद करता है तो कोई कैसे पढ़ना पसंद करता है. तो जब हम टाइम टेबल बनाते हैं फॉर आवर स्टडी, व्हाट वी आर मेकिंग अ मॉडल ऑफ दैट. सो वैसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ के भी मॉडल हुआ करते हैं. जैसे हमारे पास बहुत सारे मॉडल हैं. एक सोलो का मॉडल है, SOLOW, सोलो. एक है स्वैन मॉडल, एक है रोस्टो मॉडल, एक है फिशर्स मॉडल. तो बहुत सारे हमारे पास इकोनॉमिक मॉडल्स हैं. वो मॉडल कौन बनाता है? वो मॉडल्स जो हैं वो बनाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स. जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल्स, और उसी के बेसिस पे आगे जो है उनके पॉलिसीज जो है वो फ्रेम की जाती हैं. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमारी हेल्प करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट. उसके बाद जो इकोनॉमिक्स है, ये हम छोटा सा पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एक जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारी हेल्प करती है इन इकोनॉमिक प्लानिंग. ठीक है, जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, मैंने इस पॉइंट को जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था इकोनॉमिक पॉलिसी के बीच में. आप इसको अलग से भी दिखा सकते हैं कि जो भी हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग होती है उनके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर ऑफ प्लान जो है वो काम करता है. कि जो प्लानिंग है वो कैसी होगी, उसमें कौन कौन से सेक्टर्स को इंक्लूड किया जाएगा, कौन कौन से उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व किए जाएंगे, कौन कौन से वेरिएबल्स
इंक्लूड किए जाएंगे, उसमें कितनी मनी इन्वॉल्व होगी, उस प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, उसके लिए फाइनेंस कहां से आएगा, उससे कितनी इनकम क्रिएट होगी, वो जो पॉलिसीज या प्लानिंग बनाई गई है उसको इंप्लीमेंटेशन उसकी कैसे होगी, हु इज रिस्पांसिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन, हु इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉलो अप। अभी अब देखो खाली प्लान को बना के और उसको इंप्लीमेंट कर देना दैट इज नॉट सफिशिएंट इन इटसेल्फ। तो क्या होना चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर फॉलो अप प्रोग्राम जो है वो भी होना चाहिए, सो दैट वी कैन इवैल्यूएट द सक्सेस और द फेलियर ऑफ दैट प्लान। तो उसके सारा जो एक स्ट्रक्चर बनेगा उसको भी कौन डील करेगा, उसको भी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करेगी। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये हमारी हेल्प करती है कि हम क्या कर सके, इन सारे फील्ड के अंदर जो है इसको यूज कर सके। जैसे हमारी फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी को जानने के अंदर हेल्प करती है, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को जानने में हेल्प करती है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड सो ऑन। सो प्राइस पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी उसको बनाने में हेल्प करती है। जो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं यानी कि जो माइक्रो के लॉज हैं उनको बनाने के अंदर हेल्प करती है, नेशनल इनकम को मेजर करने के अंदर हेल्प करती है, सो दैट वी कैन फ्रेम पॉलिसीज फॉर आवर कंट्री एज वेल एज वी कैन कंपेयर आवर कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर क्या होगा, जो डेवलपमेंट के मॉडल हैं उनको बनाने के अंदर हेल्प करती है और इकोनॉमिक प्लानिंग को चलाने के अंदर जो है वो हेल्प करती है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस चैप्टर और वी आर स्टडीइंग दिस part of economics which is termed as macroeconomics, which is totally distinct in as far as the in compared to the microeconomics. So I hope कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। If there is any doubt then please put it in the comment box, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। So मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर। Till then it's goodbye from my side. Thank you very much.